morning to all of you. My name is Dr. Jiten Kumar Tripathi from Department of Physics, Mahavir Vishal PG College, Jalal Ambedkar. Today, this class of physics, I want to teach you about Coulomb's law. Under electrostatics, we talk about Coulomb's law. What is Coulomb's law? Coulomb's law is basically based on force of attraction or repulsion in between two point charges placed at a proper distance. So we gave force of attraction or repulsion between two point charges. If we consider two charges Q1 and Q2 and are placed at a distance small r, then according to Coulomb's law, the force of attraction, the force of traction or repulsion in between two point charges placed at some proper distance are directly proportional to the product of their charges and is inversely proportional to the square of the distance this is Coulomb's law. Here you can say that the force of attraction and repulsion which act between these two point charges is always directly proportional to their products and inversely proportional to square of the distance between them. यानी हिंदी में हम इसको बोले तो कूलाम के नियमानुसार दो इलेक्ट्रॉन स्थिर वैद्युत आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षी अथवा प्रतिकर्षी बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था उनके आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं F force of attraction or repulsion. Basically, we can write simple term. Yes, that means F force of attraction or repulsion. It directly proportional होता है product of their charges. यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है Q1 Q2 के समानुपाती होता है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट कहता है यही बल के बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है that means F is directly proportional inversely proportional to the square of the distance between them so दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square this is Coulomb's law but जब इसको मॉडिफाई करेंगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं F बराबर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पे यूज करते हैं Q1 Q2 upon R square this is Coulomb's law यहाँ पे where K is
where K is proportionality constant and its mathematical value can be given as the value both the 1 by epsilon is बराबर where यहाँ पे एक और टर्म यूज किया गया है also epsilon is the permittivity of the vacuum free space ये होता है permittivity of the medium इसकी मैथमेटिकल वैल्यू होती है मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इसको लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 into 10 raised to the power minus 12. This is the mathematical value of permittivity of the medium which is used in Coulomb's law. और इसका जो यूनिट होता है कूलॉम्स स्क्वायर यानी इसको लिख सकते हैं कूलॉम्स स्क्वायर और न्यूटन meter square. This is the value of epsilon. So we can calculate epsilon naught की value k की value calculate कर सकते हैं by using this value. That means we can write k is equal to 1/4 pi epsilon. 1/4 pi epsilon value calculate करना उसको लिखेंगे 1/4 into 3.1. This is the value of pi 3.1 into epsilon naught value 8.854 into 10 raised to the power minus 12. और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे this will be approximately equals to 9 into 10 raised to the power minus 9 ये कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर square. The value will be k. This is the value of k. What the value of k plus यदि हम इसको लिख सकते हैं और k is equal to 9 into 10 raised to the power 9 Newton square per sorry. Coulomb square per Newton meters. So we can write Coulomb's square in terms of k as therefore vacuum space that means the charge positive charge और negative charge अगर ये दो चार्ज हैं उनके दोनों के बीच की दूरी r है उनकी वैल्यू q1 और q2 तो ऐसी स्थिति में फोर्स ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर होगा 1/4 by epsilon naught q1 q2 upon r square यहाँ k की वैल्यू रखें
इसको लिख सकते हैं F is equal to 9 into 10 raised to power 9 Q1 Q2 upon R²। यही क्या है गुलामी का। गुलामी में बताया कि दो स्थिरावेश के प्रकार करने वाला आकर्षीय बल सदैव उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इसको हम इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम। मीडियम कैसा है ये डिपेंड करता है कि वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट या वैल्यू ऑफ के कितनी होगी। अगर स्पेस हमारा फ्री है वैक्यूम है वैसी स्थिति में मैथमेटिकल वैल्यू 9 into 10 raised to power 9 Q1 Q2 upon R² होगी। और अगर मीडियम चेंज होगा तो इसकी वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। तो दिस इज कूलॉम्स लॉ बेसिक टर्म। एंड फिर से एक बार इसको अगर हम देखें स्टार्टिंग से इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युत क्षेत्र में अगर रखे हुए किसी दो आवेश इनके बीच की कुछ न कुछ दूरी उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षीय अथवा प्रतिकर्षी बल सदैव उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F is directly proportional to Q1 Q2 upon R²। या इसको बेसिकली लिखते हैं F is equal to K Q1 Q2 upon R²। K is the proportionality constant and its value is given by 1/4 pi epsilon naught। 4 is constant, pi is constant, epsilon naught is the permittivity of the medium, that means it depends upon the type of medium। medium कैसा है उसके लिए इसकी वैल्यू निश्चित होगी। बेसिकली कंसीडर वैक्यूम ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस है अथवा वैक्यूम है तो ऐसी स्थिति में एप्सिलॉन नॉट की मैथमेटिकल वैल्यू 8.854 into 10 raised to power -12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगी। और इस मैथमेटिकल वैल्यू का यूज अगर हम ऊपर वाले इक्वेशन में करते हैं k की वैल्यू 9 into 10 raised to power 9 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगी। दिस इज द अप्रॉक्सीमेट मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ k। approximate means लगभग exactly not equals to 9 into 10 raised to power 9 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये लगभग की वैल्यू होती है और इसकी वैल्यू को हम इस फार्मूले के अंदर रखते हैं F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R²। तो ये इस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द बेसिक और जनरल फार्मूला ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ ने क्या स्टेट किया ये प्रूव हो जाता है। तो बेसिकली ये अकॉर्डिंग टू दिस definition of coulombs given by him for such kind of electrostatic charges which are placed at a distance small r in vacuum of free space। तो क्या होता है force of attraction and repulsion in between two point charges placed at some proper distance are directly proportional to product of their charges and is inversely proportional to square of the distance, which means that we कह सकते हैं कि जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो Q1 Q2 upon R² के बराबर होता है। अब अगर बात करें कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में बल रेखाएं एक दूसरे को जोड़ने का काम करती हैं। हम ये भी जानते हैं कि किस स्थिति में आकर्षण बल काम करता है और किस स्थिति में प्रतिकर्षण बल काम करता है। अगर हमारे पास ये प्लस है ये प्लस है तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन नेगेटिव है तो भी बीच कार्य करने वाला जो बल होगा वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। जबकि एक प्लस और एक माइनस तो दोनों के बीच काम करने वाला जो बल होगा ये कैसा होगा अट्रैक्टिव नेचर का। अट्रैक्टिव या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसी स्थिति में आवेशों को जब दो आवेश
फील्ड लाइन के बारे में पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ पे बल रेखाएं शेड्यूल बाहर की तरफ निकलती और कोई नेगेटिव चार्ज है तो बल रेखाएं उसके अंदर प्रवेश करती हैं बाहर से अंदर की तरफ होती हैं। तो इन बल रेखाओं की प्रवृत्ति के कारण ये फोर्स हमारे पास देखने को मिलते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स लाइन ऑफ द चार्जेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन कैन बी डिफाइंड। तो यहाँ पे जो बल रेखा होगी वो सब लाइन ऑफ एक्शन लाइन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस से अलाउंग होगी। अब इसका हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। पूछा जाता है कि सो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब वेक्टर फॉर्म ऑफ coulombs वेक्टर फॉर्म coulombs के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इंटीग्रल पॉइंट चार्ज electrostatic point charges this is q1 and this is q2 ये प्लस ये माइनस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इनके बीच अगर एक दूरी है r इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वैसे स्थिति में भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा वेक्टर f होगा। तो बेसिकली वी नो दैट कोई भी वेक्टर हो वेक्टर a को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर a इनटू यूनिट वेक्टर a यूनिट वेक्टर या यहाँ पे यूनिट वेक्टर a की वैल्यू निकालना वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a ऐसा कुछ लिख सकते हैं। दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन वेक्टर। ये हम पहले से जानते हैं। कूलम्ब का ये आता है कि वेक्टर f होगा वो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर r के फॉर्म में डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। तो फिर इसको हम क्या कर सकते हैं इस फार्मूला को लिख सकते हैं f is equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square और इसकी वैल्यू अगर हम रखें तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर r upon mod of vector r that is r। तो यहाँ पे फाइनली इक्वेशन को लिख सकते हैं वेक्टर f is equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r cube into vector r। This is the vector form of Coulomb's. Vector form of Coulomb's. So thank you. And we'll talk about next portion of electrostatic, that is electric field, electric potential, and other topics in next lecture. This is the first lecture of physics which we will deliver online for you. तो आप लोग इस लेक्चर को आराम से देखिए समझिए। जहाँ पे ना समझ में आता हो तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। आपको कमेंट करके आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।